So dear friends, the next topic is mixture and alligations, which is in continuation with ratio proportion variation. That means the concept of ratio proportion variation will also be used here in mixture and alligation. So first we will study mixture. Mixture. So in our daily life, we use mixtures like you drink tea, coffee, milk, or cold drink. So all these are mixtures of two or more things. Even air. Air is also a mixture of gases. Air which we breathe. It is mixture of different gases like oxygen, nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, etc. So daily we are using these mixtures. So all these are called physical mixtures, which you can touch, smell, or see. So these are physical mixtures. But we can have non-physical mixtures also, which you cannot touch or see or smell. But mathematically, we can mix these things. Like we can mix cost price of different articles. Mixture of cost price is possible. Cost price, profit, percentage, ages, etc. So these are non-physical mixtures. So we will study that in the allocations part. How to mix the non-physical things like cost price, profit, ages. So that is covered in the allocations part. So again coming back to the mixture part. So it will have at least two components like sugar in water. Sugar dissolved in water. So that is a mixture. The solution or a mixture of sugar and water. The sugar which is mixed is called the solute और जिसमें मिक्स हो रही है वाटर में तो वाटर को क्या बोलते हैं सॉल्वेंट तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्कूल लेवल में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर मेक द सॉल्यूशन like sugar in water, salt in water. What is important here? Concentration. Concentration of the solution or the mixture. जनरली एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में जिसका फॉर्मूला आप पहले नोट कर लीजिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ
solution into 100, concentration in percentage, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, because we have to convert into percentage. तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में ले सकते हैं, यहाँ पे केजी में ले सकते हैं, डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन सेम यूनिट होना चाहिए, ग्राम या केजी, इंटू 100. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो एक एग्जांपल दिखा था मैंने, शुगर इन वाटर. सो 50 ग्राम शुगर dissolved in 950 gram of water. What is the concentration of sugar here? So the solution mass will be, total mass of solution 50 plus 950, that is 1000 gram. Total solution has become 1000 gram. So now the concentration of sugar will be 50 gram sugar dissolved in total 1000 gram solution. So 50 upon 1000 into 100 or 5%. So we can say it is a 5% solution or 5% mixture, क्योंकि शुगर या शक्कर है वो कितना कंसंट्रेशन है, 5%. But if we have both components liquid plus liquid solution or liquid plus gas, or we may have gas plus gas like air. तो अगर इस टाइप के सॉल्यूशंस या मिक्सचर्स हैं, then we will not take mass, what we will take, वॉल्यूम. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100. And a volume you can take in milliliter or liter. So volume of solute upon volume of solution into 100. If the components are liquids or gases. If the components are solid, then we have to take the mass. But if it is liquid and gases, we have to take the volume. So volume upon volume. So before moving further, we will take one example to understand this concept of concentration. A mixture of this is actually one campus question I am taking. 125 liter mixture of milk and water has 20% water in it. मतलब जो मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है जिसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 125 लीटर, 125 लीटर. उसके अंदर 20% वाटर है, मतलब बाकी 80% मिल्क है. तो ये ओरिजिनल कंपोजिशन है इस मिक्सचर की. 125 लीटर वॉल्यूम है टोटल, उसमें 20% वाटर है, 80% मिल्क है. नाउ आई एम एडिंग ओनली वाटर.
हाउ मच मोर water to be added to make it 25% water। मतलब मुझे वाटर ऐड करना है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ानी है, बेसिकली उसको सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है। मिल्क उतना ही रहेगा, कितना पानी और डाल दें इसमें जिससे कि फाइनल कंसंट्रेशन वाटर की, जो फाइनल मिक्सचर है उसमें 25% वाटर हो जाए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते रहते हैं कैंपस में। इज इट क्लियर? ओरिजिनल मिक्सचर 125 लीटर, उसमें 20% वाटर है, मुझे सिर्फ वाटर ऐड करना है, ओनली वाटर टू बी एडेड टू मेक इट 25% वाटर। Now how to solve this question now? The original composition of mixture was 125 liter was having so milk was 80% and water was 20%. The actual quantity 100 liter and 25 लीटर। तो जो ओरिजिनल मिक्सचर था उसमें मिल्क M कितना था, 100 लीटर, और वाटर W 20% और 125 मतलब 25 लीटर पानी था और 100 लीटर मिल्क था। ऐसे टोटल 125 लीटर मिक्सचर था ये इनिशियली। अब क्या करना है, आपको सिर्फ पानी ऐड करना है, यू टू ऐड ओनली वाटर। तो सपोज आई ऐड x लीटर वाटर, तो न्यू मिक्सचर में अब कितना हो जाएगा, वाटर विल बिकम 25 प्लस x और मिल्क तो उतना ही रहेगा 100। इज इट क्लियर? आई हैव एडेड ओनली x लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर और द सॉल्यूशन। तो फाइनल वाटर आपका कितना हो गया, 25 प्लस x। मिल्क कितना है, 100 का 100 ही रहेगा, क्योंकि वो मिल्क ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं। तो अभी जो फाइनल वाटर हो गया 25 प्लस x, दिस शुड बी इक्वल टू 25% ऑफ द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 25 प्लस x शुड बी इक्वल टू 25% ऑफ फाइनल मिक्सचर। कितना हो गया, 125 प्लस x, जो कि मिल्क 100 है और वाटर 25 प्लस x हो गया, तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा 125 प्लस x। ठीक है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा x लीटर से। सो द इक्वेशन इज नाउ 25 प्लस x इक्वल टू 25% ऑफ टोटल मिक्सचर इज 125 प्लस x। तो 25% मीन्स 25 अपन 100 1/4। तो 25 प्लस x इक्वल टू 1/4 ऑफ 125 प्लस x। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली विल गेट 3x इज इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 25/3, दैट इज 8.33 लीटर। So our answer is 8.33 liter of water is to be added to make it 25% water. Now we come to the allegation part. Allegation as already told you, जिसमें नॉन फिजिकल थिंग्स में मिक्स हो सकती हैं। तो अब इसको कैसे यूज करना है, एलिगेशन क्या होता है इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो एक शॉपकीपर है,
उसके पास टू टाइप्स ऑफ राइस आर अवेलेबल, उसके पास 2 टाइप के चावल हैं, बासमती चावल। ठीक है, टाइप ए जो है थोड़ा महंगी क्वालिटी का है, उसको जो कॉस्ट पड़ रही है शॉपकीपर को 100 रुपीज़ पर केजी है ना, थोड़ा ये महंगी वैरायटी है बासमती की। और इसके पास एक और बासमती अवेलेबल है टाइप बी, वो थोड़ा चीपर या सस्ता क्वालिटी है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 60 रुपीज़ पर केजी, 60 रुपये किलो। तो उसके बाद एक महंगी वैरायटी है 100 रुपये किलो और एक सस्ती भी है 60 रुपये किलो। दोनों बासमती हैं तो दिखने में एक जैसे हैं, तो वो मिक्स भी कर देगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि ये 2 टाइप ऑफ राइस उसने मिक्स कर दी है। अब वो शॉपकीपर चाहता है कि जो मिक्सचर करे वो ए और बी का, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद उसकी जो मिक्सचर की कॉस्ट आ जाए 75 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, उसका टारगेट है कि मिक्सचर की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए 75 रुपीज़ पर केजी। ए और बी टाइप के चावल को मिक्स करने के बाद मिक्सचर कॉस्ट 75 रुपीज़ पर केजी। तो क्वेश्चन हेयर अराइजेस कि किस रेशियो में उसको मिक्स करना है ए और बी को। रेशियो मतलब उनका वेट का रेशियो या मास का रेशियो, कितने किलो ए लेना है चावल, कितने किलो बी चावल लेना है, ताकि दोनों टाइप ऑफ राइस मिक्स हो जाए और मिक्सचर कॉस्ट उसकी आ जाए 75। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन, बेसिक पर्पस ऑफ एलिगेशन टू फाइंड दिस रेशियो ए एंड बी। ये किसका रेशियो है, इनकी क्वांटिटी का। हाउ मच kg ऑफ ए टू बी मिक्सड विद हाउ मच kg ऑफ बी टाइप राइस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए विल यूज दिस एलिगेशन टेक्निक। तो आपको एक सिंपल डायग्राम बनाना है विच इज कॉल्ड एलिगेशन डायग्राम। सिंपल डायग्राम देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। एलिगेशन डायग्राम, एक साइड आप लिख दीजिए ए, एक साइड लिख दीजिए बी। तो ए टाइप ऑफ राइस की कॉस्ट क्या थी 100 रुपये, बी की 60 है ना, ये सी पी। अभी दोनों का अपन कॉस्ट प्राइस मिक्स कर रहे हैं। 100 और 60 क्या उनका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, दोनों को मिक्स करके एवरेज मिक्सचर कॉस्ट कितनी लानी है 75। तो उसको ऐसे अपन बीच में लिख देंगे 75, लेफ्ट साइड में 100, राइट साइड में 60, बीच में 75। अब सिंपली आपको कंप्लीट करना डायग्राम कैसे, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर, और उसी डायरेक्शन में लिख दें एरो की डायरेक्शन में। तो 100 माइनस 75 दैट इज 25, और लेफ्ट साइड में क्या जाएगा 75 बड़ा है 60 से, तो 75 माइनस 60 और 15। तो अब देखिए डायग्राम कंप्लीट हो गया। लेफ्ट साइड में क्या नंबर आ गया 15, 15, राइट साइड में क्या नंबर आ गया 25, 25। तो यही जो रेशियो है 15:25, दिस इज द रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए एंड क्वांटिटी ऑफ बी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3:5। ये अपना टारगेट रेशियो मिल गया 3:5, किसका ए और बी का। इज द डायग्राम क्लियर टू यू? दैट मीन्स वेट या मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी, ये रेशियो होना चाहिए 3:5। मतलब अगर 3 किलो अपन ए टाइप का राइस ले रहे हैं तो उसमें 5 किलो बी टाइप का राइस मिक्स करना है।
ये अगर 300 किलो ले रहे हैं, 3 क्विंटल ए, तो उसमें 5 क्विंटल या 500 किलो बी टाइप का राइस मिक्स हो जाएगा। तो रेशियो, बेसिक रेशियो अपने को मिल गया 3:5। दैट मीन्स 3 kg ऑफ ए विल बी मिक्सड विथ 5 kg ऑफ बी टाइप। अब अपन वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में 75 आ रहा है कि नहीं मिक्सचर कॉस्ट। तो ए की कॉस्ट क्या थी, 100 रुपये किलो, तो 3 kg कितना हो जाएगा, 300 रुपये। बी का कॉस्ट क्या था, 60 रुपये किलो, तो 5 किलो बी टाइप चावल, 5 into 60 अगेन 300 रुपीज़। अब आप देखिए टोटल अगर मिक्सचर करें 3 किलो और 5 किलो, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 8 kg मिक्सचर बन गया चावल का। उसकी कॉस्ट क्या आ गई, 300 + 300 600 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने 3 किलो चावल ए और 5 किलो चावल बी मिला दिए, मिक्स कर दिया, तो 8 किलो मिक्सचर बन गया। उसकी कॉस्ट आपकी आ गई 600 रुपये, 300 + 300। तो मिक्सचर की कॉस्ट पर केजी क्या आ गई, कॉस्ट पर केजी ऑफ मिक्सचर 600/8, दैट इज 75। तो यही इसका टारगेट था शॉपकीपर का कि 75 रुपीज़ पर केजी उसकी एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए मिक्सचर की। सो दैट इज अचीव्ड विद हेल्प ऑफ एलिगेशन डायग्राम। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एलिगेशंस के लिए। तो अगर जनरल फॉर्म में इसको लिखें, फॉर्मूला ऑफ एलिगेशन, DC, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DC? डी मतलब डीलर, महंगी टाइप, C मतलब चीपर, सस्ती टाइप क्वालिटी। तो अपन एक महंगी एक सस्ती मिला रहे हैं, D and C, और बीच में क्या आ रहा है, M मतलब मीन कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की एवरेज कॉस्ट। तो एक तरफ D एक तरफ C, डीलर चीपर महंगी सस्ती, बीच में मीन कॉस्ट M। तो आप देखिए तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, M - C, और राइट साइड में क्या आएगा, D - M। तो ये रेशियो मिल गया अपने को। एक इसका क्वांटिटी या वेट का रेशियो मिल गया, D/C इज इक्वल टू M - C अपॉन D - M। ठीक है, तो ये एलिगेशन डायग्राम का एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान से देखिए, मैंने D लेफ्ट साइड में लिखा है और C राइट साइड में लिखा है। ठीक है, तो जो आप लेफ्ट साइड में लिखते हो उसका रेशियो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, ये ध्यान रखना। जो आप राइट साइड में लिखोगे उसका रेशियो डिनोमिनेटर में जाएगा, C का रेशियो D/C। सपोज बाई चांस किसी स्टूडेंट ने उल्टा कर दिया, ठीक है, उसने उल्टा रेशियो लिख दिया, तो क्या होगा, उसने C लेफ्ट साइड में लिख दिया, D राइट साइड में लिख दिया, बीच में M आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, M - C, इधर D - M। तो यहाँ रेशियो किसका आ गया, अब C/D का, तो रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, D - M अपॉन M - C। तो अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो रेशियो भी इन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जो भी चीज़ आप लेफ्ट साइड में लिख रहे हो उसका जो टर्म आएगा न्यूमरेटर में आएगा, और जो भी चीज़ आप राइट साइड में लिख रहे हो वो D नीचे आएगा, C/D। पहले क्या था, D/C, अब क्या हो गया, C/D, तो रेशियो भी इन्वर्ट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी आप लेफ्ट साइड में लिख रहे हो उसकी क्वांटिटी का रेशियो न्यूमरेटर में आएगा, जो भी आप राइट साइड में लिख रहे हो उसका डिनोमिनेटर में जाएगा। और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, CMD शुड हैव सेम यूनिट्स।
means physically they should be same things, C, M and D, and the mean should be between D and C. ठीक है, क्योंकि मीन है, वो एवरेज है, तो एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, तो मीन शुड बी ग्रेटर देन सी एंड लेस देन डी, डीलर एंड चीपर के बीच में मीन आएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है while making this alligation diagram. So we'll take some examples also for further clarifying it. We can take examples from our book also. Question number 8 of our book. Find the ratio in which rice at the rate 7.20 per kg to be mixed with rice at rate 5.70 per kg. ठीक है, यहाँ भी दो टाइप के चावल मिक्स कर रहा है, एक 7.20 पर केजी है, दूसरा 5.70 पर केजी है। टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर वर्थ रुपीस, तो मिक्सचर का रेट क्या आना चाहिए? एट द रेट 6.30। ठीक है, तो अपना टारगेट क्या है? मिक्सचर की कॉस्ट 6.30 पर केजी चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड मिक्सचर कॉस्ट पर केजी। तो अगेन आई विल मेक द एलिगेशन डायग्राम जैसे भी बनाया था, 7.20 और राइट साइड में आपका आ जाएगा 5.70, बीच में 6.30। ठीक है, जो आपका रिक्वायर्ड प्राइस पर केजी है मिक्सचर का। तो सिंपली आप माइनस कर दीजिए 7.2 माइनस 6.3, 0.90 इधर आ जाएगा राइट में, और 6.3 माइनस 5.7, 0.60। तो रेशियो रिक्वायर्ड इज नो 60/90 और 2:3। So this is the required ratio, 2:3. I hope it is clear from you how to make this diagram. One more example we take, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, कॉस्ट प्राइस मिक्स कर सकते हैं, एजेस भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द एजेस। In an office, average age of all the female employees 21 years। जितने भी उस ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एवरेज एज कितनी है? 21 years। एंड एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इज 32 years। तो अलग अलग देखें, फीमेल्स की एवरेज एज 21 है और मेल एम्प्लॉयज़ की एवरेज एज 32 years है। बट ओवरऑल एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टाफ इज 28 years। ठीक है, कंबाइन कर दें मेल और फीमेल को, तो टोटल स्टाफ की एवरेज एज कितनी आ रही है? 28 years। फीमेल्स की 21 है, मेल्स की 32 एवरेज एज है, और कंबाइंड ओवरऑल एज ऑफ द स्टाफ इज 28 years। ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी total number of employees in this office
ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, व्हाट कैन बी द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दिस ऑफिस। ऑप्शंस गिवन आर ए 200, बी 221, सी 231 और डी 250। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए, 200, 221, 231, 250। इन चार में से एक ऑप्शन करेक्ट है, दैट कैन बी द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दिस ऑफिस। ठीक है, 200, 221, 231 और 250। ठीक है, फोर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन डायग्राम कैसे बनेगा इसमें, तो यहाँ पे आपको क्या मिक्स करना है, उनकी एजेस को मिक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई फीमेल्स, यहाँ मेल्स, और बीच में आ जाएगा उनका एवरेज। तो फीमेल की एवरेज एज क्या थी 21, मेल की 32 और ओवरऑल एवरेज वाज 28। ठीक है, सो दैट इज द मीन और एवरेज और ओवरऑल स्टाफ 28 ईयर्स। नाउ यू सी कंप्लीट द एलिगेशन डायग्राम। तो 32 माइनस 28 यहाँ पे क्या आएगा 4 और 28 माइनस 21 7। तो ये क्या रेशियो आ गया 4:7। अब ये किस चीज़ का रेशियो है, फिजिकली ये क्या चीज़ है 4:7, दैट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो आ गया। मिक्स यहाँ पे क्या हुई उनकी एजेस है ना, 21, 32, 28 ये एजेस थी ईयर्स में। ठीक है, पर ये कन्वर्ट किस में हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो आ गया 4:7। मीन्स फॉर एवरी 4 फीमेल्स देयर आर 7 मेल एम्प्लॉइज। ठीक है, तो आपको डायग्राम क्लियर हो गया, एजेस को मिक्स करके अपने रेशियो फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फीमेल एम्प्लॉइज एंड मेल एम्प्लॉइज का रेशियो वी हैव अचीव्ड 4:7। दैट मीन्स इफ फीमेल्स आर 4K तो मेल विल बी 7K। तो टोटल एम्प्लॉइज कितने हो गए 11K। ठीक है, के मेथड अप्लाई कर दिया जो रेशियो में सीखा था। ये रेशियो क्या आ गया था 4:7। तो एक्चुअल नंबर ऑफ फीमेल कैन बी 4K एंड मेल कैन बी 7K। सो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय विल बी 11K। अभी K किस टाइप का नंबर होगा, कैन K बी इन डेसिमल, नो, बिकॉज दीज आर नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो K शुड बी ए होल नंबर ओनली, इट कैन नॉट बी इन डेसिमल, ये ध्यान रखिए। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 11K, मीन्स मल्टीपल ऑफ 11। तो K should be a whole number, K cannot be in decimal. So now see the options. A option was 200. So is 200 a multiple of 11? If you divide by 11 it will not completely divide, so this cannot be the answer. B option आपका क्या था 221, is it multiple of 11? No, तो 221 एम्प्लॉइज भी नहीं हो सकते। सी ऑप्शन क्या था आपका 231, so if you divide by 11 it will be completely visible, 11 into 21, so this can be the number of employees 231. The correct answer is C option, 231 can be the total number of employees. D option also you can see 250 is not a multiple 11. So this is how to solve the question based on allegation. Here we have mixed the ages of different employees, males and females, to get the answer. One more example we'll take.
which is commonly asked. Milk and water. So here we are mixing milk and water. The cost price of milk or pure milk, suppose say 40 rupees per liter, 40 रुपये लीटर मिल्क है कॉस्ट प्राइस. वी आर मिक्सिंग द कॉस्ट प्राइस हियर. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर? ठीक है, तो ऑलवेज टेक द कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर एज 0 बिकॉज वाटर इज फ्रीली अवेलेबल. यदि क्वेश्चन में कुछ दिया है वाटर का कॉस्ट प्राइस तो वो लेना है, नहीं तो यू कैन टेक एज 0. वाटर इज फ्री. तो फ्री का पानी वो मिला रहा है किसमें? प्योर मिल्क में, दूध वाला. और मिल्क की कॉस्ट कितनी है? 40 रुपये लीटर. और उसका टारगेट क्या है कि 32 रुपीज़ उसकी मिक्सचर कॉस्ट आ जाए. 32 रुपीज़ पर लीटर. ठीक है, ये उसका टारगेट है. तो किस रेशियो में मिक्स करेगा वो? तो 32 माइनस 0 32 एंड 40 माइनस 32 8. तो 32:8 दैट इज 4:1. ठीक है, ये किसका रेशियो आ गया? फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का. ठीक है, 4:1 के रेशियो में उसको मिक्स करना है. मतलब 4 लीटर अगर मिल्क लेता है तो उसमें 1 लीटर वाटर या पानी मिलाएगा. तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी मिक्सचर की 32 रुपीज़ पर लीटर. ठीक है, तो ये रेशियो अपने को मिल गया 4:1. ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया. लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी बाकी है. आगे इस क्वेश्चन में क्या है? नाउ इफ ही सेल्स, ही मीन्स द मिल्कमैन, if he sells this mixture at cost price of pure milk, then what is his profit percentage? ठीक है, अब उसने 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला के मिक्सचर बना दिया. ठीक है, मार्केट में फिर वो गया वो, और उसने मार्केट में उसी रेट पे बेच दिया जो प्योर मिल्क का है, 40 रुपये लीटर में. ठीक है, मार्केट में उसने बोला कि साहब मैं तो कुछ नहीं कमा रहा हूँ, उसी रेट पे बेच रहा हूँ. और एक्चुअली वो प्योर मिल्क नहीं बेच रहा, एक्चुअली क्या बेच रहा है वो? मिक्सचर, डाइल्यूटेड मिक्सचर, इसमें ऑलरेडी वो पानी मिला चुका है, उसकी कॉस्ट कम कर चुका है वो. तो नाउ इफ ही इज सेलिंग एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? ठीक है, तो व्हाट इज सेलिंग? ही इज नॉट सेलिंग प्योर मिल्क, व्हाट इज सेलिंग? मिक्सचर. तो आप देखिए मिक्सचर जो बेच रहा है वो, उसका कॉस्ट प्राइस क्या आ गया था? 32 रुपीज़ पर लीटर. ठीक है, पर लीटर उसका कॉस्ट प्राइस आ गया था 32 रुपीज़ लीटर. लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है उस मिक्सचर का जो मार्केट में बेच रहा है? दैट इज 42 रुपीज़, सॉरी 40 रुपीज़, जो कि प्योर मिल्क का कॉस्ट प्राइस है मार्केट में. 40 रुपये में बेच रहा है मिक्सचर है वो, जिसमें ऑलरेडी पानी मिला हुआ है. ठीक है, तो यही उसकी कमाई है मिल्कमैन की, जो उसने पानी मिला दिया. तो अब 32 रुपीज़ का मिक्सचर वो बेच रहा है 40 में, तो प्रॉफिट कितना मिल गया उसको पर लीटर? 40 माइनस 32 दैट इज 8 रुपीज़ पर लीटर ही इज मेकिंग द प्रॉफिट. ठीक है, तो 1 लीटर में वो 8 रुपये कमा रहा है. लेकिन अल्टीमेटली अपने को क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंटेज. तो एज वी हैव डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या लेना है आपको? मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस लेना है, ना कि प्योर मिल्क का, क्योंकि वो मिक्सचर बेच रहा है. तो विल डिवाइड 8 बाय 32, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर.
into 100, so equal to 25%। तो इसको 25% प्रॉफिट हो गया। कैसे? उसने 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया, कॉस्ट प्राइस उसने रिड्यूस कर लिया 40 से 32 में, वापस उसने उसको मार्केट में 40 की रेट में बेच दिया, तो उसको 8 रुपीज़ पर लीटर का फ़ायदा हो गया, विच इज़ इक्वल टू 25%। सो दिस इज अवर आंसर, प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। So now I hope the theoretical concepts of mixture and alligation are clear to you, and how to apply this concept by making a proper diagram. So now you can solve the questions given our textbook and online portal, and any doubts we can discuss in our doubt sessions later on. Thank you.